1.3 NCERT, it says classify the following as amorphous or crystalline. First one is polyurethane. So anything which is polymer is amorphous. So polyurethane is amorphous. Naphthalene is crystalline solid. Benzoic acid is also crystalline. Teflon, I told you, Teflon is a polymer which is used in non-sticky utensils. So it's also amorphous. Potassium nitrate, crystalline solid. Cellophane, amorphous. Polyvinyl chloride, PVC, amorphous. Fiberglass, amorphous. Copper is a metal, so it's crystalline. Okay, next question 1.4. Why is glass considered a supercooled liquid? So glass, unlike crystalline solids, has a tendency to flow. We know that the glass pans fixed in the windows of old buildings are slightly thicker at the bottom than at the top. It's because glass is a highly viscous liquid, and that's why we consider it as a supercooled liquid. Glass is not a true solid, it's a pseudo solid. Okay. Next question 1.5 says refractive index of a solid is observed to have same values along all directions. Okay, so refractive index has same values along all directions. That means it is isotropic in nature. So comment on the nature of solid. So it is showing isotropy. That means it should be amorphous solid. And would it show cleavage property? It would not show cleavage property because crystalline solids show cleavage property. Okay, fine. Next हम लोग को पढ़ना आप classification of crystalline solids. Basis of intermolecular forces in them. Crystalline solids are of 4 types. They could be either molecular solids, ionic solids, metallic solids, and covalent or network solids. So molecular solids means what? Molecular solids means the constituent particles are molecules. For example, take ice. Ice, we know it is simply the solid form of water. So the constituent particles are H2O molecules. So it's a molecular solid. Ionic solid means constituent particles are ions. Metallic solid means here constituent particles are simply metal atoms. And covalent or network solids means there is simply covalent bond between the atoms of non-metal. It contains graphite, for example, or diamond. So I will explain it in detail when the time comes. First, let's understand molecular solids. So I told you the constituent particles are molecules in the molecular solid. Main thing is ये जो molecules है, ये molecules खुद इन molecules के बीच में किस तरह का force of attraction है, intermolecular force of attraction कैसा है, उसके basis पे आपका ये फिर से 3 तरह का होता है, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड. नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड करने का मैं आप एग्जांपल ले लो, सॉलिड नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल. तो आप इमेजिन करो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, इस रूम में नाइट्रोजन गैस है 78%, आपके भी रूम में होगा. सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ये रहा आपका N ट्रिपल बॉन्ड N, ये दूसरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N ट्रिपल बॉन्ड N. तो these molecules are non-polar. Non-polar means there is no separation of charge, no partial positive, no partial negative. So only force of attraction which is keeping them together is dispersion forces or London forces. We call them dispersion forces or London forces, which are very weak intermolecular forces of attraction. So to make them solid, नाइट्रोजन तो हमको पता है रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, आपको उसको बहुत कूल करना पड़ता है, फिर प्रेशर लगाते हैं उस पर तो लिक्विड बनता है, फर्दर कूल करते हैं तो सॉलिड बनता है. तो सॉलिड नाइट्रोजन में पार्टिकल्स के बीच में सिर्फ डिस्पर्जन फोर्सेस है. तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स. अच्छा, तो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स में देख रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, यानी कि दीज सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो लो. ओके, सॉलिड स्टेट में लाने के लिए उनको बहुत कूल करके टेम्परेचर उतना ठंडा मेंटेन किए रखना पड़ता है, तो फिर गैस आ जाएगा रूम टेम्परेचर पे.
तो सॉलिड नाइट्रोजन हो गया, कोई सा भी आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लो, सॉलिड ऑक्सीजन, फिर सॉलिड हीलियम, सॉलिड आर्गन। आप बोलोगे अच्छा N2 और O2 तो मॉलिक्यूल है, हीलियम ही मॉलिक्यूल है, हीलियम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। हीलियम के मॉलिक्यूल ने बोलेंगे बस उसका एक ही एटम होता है, क्योंकि ये सब नोबल गैसेस है ना, तो ये सब अकेले ही खुश है, इनको बॉन्डिंग का जरूरत नहीं है। ओके, तो दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज लो। नेक्स्ट है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स है वो पोलर होगा। फॉर एग्जांपल आप ले लो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है, सल्फर पे एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे फिर इधर दो लोन पेयर होता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड पोलर मॉलिक्यूल है। दैट मीन्स SO2 का मॉलिक्यूल्स के बीच में डायपोल इंटरेक्शन होगा। तो और साथ में डिस्पर्जन फोर्सेस तो यहाँ पे हैं। डिस्पर्जन फोर्सेस बाय द वे सब जगह रहता है। तो ये जो डिस्पर्जन फोर्सेस है और डायपोल इंटरेक्शन है, इन दोनों को मिला के हम लोग वैन डर वाल्स फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका वैन डर वाल्स फोर्स है। तो इसका मतलब ये है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट इनके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन होगा ये भी आपका सॉफ्ट ही, रूम टेम्परेचर पे ये भी गैस ही होगा, बहुत ठंडा करना पड़ेगा तब सॉलिड बनेगा। एंड दीज आर ऑल्सो नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन दोनों का प्रॉपर्टी काफ़ी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें अब मॉलिक्यूल्स जो है वो पोलर है। तो पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ गया। और एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका सॉलिड HCl। ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है। आप हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है, तो पोलर है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय द वे एक स्पेशल टाइप है आपका पोलर बॉन्ड का ही स्पेशल टाइप है हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन कनेक्ट हो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन, फिर थर्ड नंबर पे आता है नाइट्रोजन। तो जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ कनेक्ट हो, जैसे HF में, तो एक HF मॉलिक्यूल, फिर अगला HF मॉलिक्यूल फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव होगा। इनके बीच में ये जो डॉटेड लाइन है वो शो कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। उसी तरह से एक तीसरा HF का मॉलिक्यूल होगा, चौथा HF का। तो HF में आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड बहुत सारा मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सेम कहानी वाटर के साथ, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी कनेक्ट होता है तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ये एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। या फिर जब हाइड्रोजन कनेक्ट हो नाइट्रोजन से अमोनिया में, जैसे एग्जांपल अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, सॉरी यहाँ पे भी इस पर 2 लोन पेयर है, यहाँ फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर है। अमोनिया, सो अमोनिया को आप चाहो तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से भी रख सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी रख सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पोलर बॉन्ड का ही क्या है, स्पेशल केस है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ जाता है तो इनका आपको सॉलिड फॉर्म लेना है। तो सॉलिड HF हो गया, सॉलिड वाटर यानी कि आइस, और सॉलिड अमोनिया हो गया। दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है आयोनिक सॉलिड्स। सो आयोनिक सॉलिड्स क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यहाँ पे आयंस होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये आपका Na+ आयंस और Cl- आयंस यानी कि सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस के मिलने से बना होता है। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि एक Na+ आयंस 6 Cl- आयन से सराउंडेड होता है सब तरफ से। आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4, एक Na+, 4 Cl- आपको प्लेन में दिख रहा है। एक Cl- प्लेन के बाहर होगा, बोर्ड के प्लेन के बाहर होगा यहाँ पे,
और एक उसके अंदर होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको मॉडल से दिखेगा, ये जो मॉडल है आपका, ये NaCl का मॉडल है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे जो ग्रीन बॉल्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको Cl- को, और ये जो ग्रे बॉल्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका Na+। तो आप देख सकते हो एक Na+, बीच वाले Na+ को देखो, ये जो बीच में है बिल्कुल, ये जो एक Na+ है 6 Cl- से सराउंड होगा। ये देखिए 6, एक यहाँ 1 2 3 4 इसके प्लेन में, फिर एक यहाँ ऊपर पांचवा और एक यहाँ नीचे छठा। ठीक है, तो एक Na+ जो है वो 6 Cl- आयन से क्या सराउंडेड है। तो उसी तरह से एक Cl- जो है वो भी 6 Na+ से सराउंडेड होगा। 1 2 3 4 यहाँ प्लेन में, एक प्लेन के बाहर और एक बोर्ड के आप पीछे सोच लो। तो दीज आर आयोनिक सॉलिड्स। अब आयोनिक सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। तो कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में अगर सेपरेशन आर है तो उनके बीच में जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे भी वही वाला फोर्स है यहाँ पे। तो ये Na+ Cl- के बीच में अट्रैक्शन, Na+ Cl- के बीच में अट्रैक्शन, और भी जो सब तरफ से होगा पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, रिपल्सिव फोर्सेस भी है। जैसे कि ये वाला Cl- इस Cl- से रिपेल हो रहा है, ये Cl- इस Cl- से रिपेल हो रहा है, रिपल्शन। ओवरऑल अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। आप देख सकते हो कि Na+ Cl- तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ये ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्सेस उतना ज़्यादा होगा, स्क्वायर टाइम्स। लेकिन ये जो लाइक चार्जेस है जहाँ पे रिपल्सन हो रहा है तो वहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा है। तो सेपरेशन ज़्यादा है तो रिपल्शन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो ओवरऑल अट्रैक्शन ज़्यादा है। नाउ अब मेरा एक सवाल ये है कि आयोनिक सॉलिड्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि इनके बीच में आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इतना हार्ड होने के बावजूद भी ये ब्रिटल क्यों होता है? ब्रिटल कहने का मतलब है कि एक बार इसको आप हैमर करोगे, हैमर से स्ट्राइक करोगे तो फिर ये शैटर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। ऐसे कि आप नमक का कोई क्रिस्टल ले लीजिए, फिर काला नमक का बड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए और उसको स्ट्राइक कीजिए तो वो टूट जाएगा। तो ऐसा होने का वजह यह है कि जब आप उसको स्ट्राइक किए हैमर से, तो ये जो डिफरेंट लेयर्स है आयंस का, जो कि एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है, तो आप उसको डिस्प्लेस किए आयंस को, तो एक लेयर दूसरे लेयर को डिस्प्लेस किए। तो लेट्स से यहाँ पे देखिए एक सेकंड वाले लेयर को डिस्प्लेस करते रहें एक स्टेप आगे, तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पे Cl- है, यहाँ पे आपका Na+ रहा होगा, तो ये Na+ उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, मतलब जहाँ पे Cl- है वहाँ पे Na+ आ जाएगा। यहाँ वाला Cl- आगे चला जाएगा, यहाँ वाला Cl- आगे चला गया, यहाँ पे जो Na+ था वो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे जो Cl- था वो यहाँ पे आ गया। ना अब देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच में अट्रैक्शन था, अब इनके बीच में भयानक तरीके से रिपल्सन होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस और इनके बीच में रिपल्सन होगा, ये इस जगह से ब्रेक कर जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो मेटालिक सॉलिड्स के साथ ऐसा नहीं है। अभी हम लोग जस्ट देखने वाले हैं, कोई सा भी मेटल लीजिए, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, और उसको पूरा हैमर से लेके हम लोग पीटते हैं तो देखते हैं कि वो तो मेलिएबल होता है, वो चूर चूर नहीं होता है आपका, वो थिन शीट्स में भले आ जाएगा, उसको आप पीट के थिन शीट्स में ला सकते हो। लेकिन आयोनिक सॉलिड्स को आप हैमर करते हो तो वो शैटर हो जाता है। तो आयोनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल, और यही आपका इसका एक्सप्लेनेशन है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे हो क्या रहा कि जब आप उसको स्ट्राइक कर रहे हो तो ये जो आयंस का लेयर्स है वो डिस्प्लेस हो रहा है, और लाइक चार्जेस वाला आयंस एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आ जा रहा है। तो मत भूलिए कि सिर्फ अट्रैक्शन का फोर्स यहाँ नहीं था, रिपल्सन का भी फोर्स है। तो शुरू में अट्रैक्टिव फोर्सेस हावी था, लेकिन अब रिपल्सिव फोर्सेस आपका डोमिनेट कर गया और ये शटर हो जाता है। फाइन। और इसके बाद आयोनिक सॉलिड्स का क्या प्रॉपर्टी होगा कि आयोनिक सॉलिड्स जो है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा,
क्योंकि ये जो आयंस है वो मूव करने के लिए फ्री नहीं है। चार्ज्ड पार्टिकल्स चाहिए जो कि मूव कर सके, यानी कि फ्री चार्ज्ड पार्टिकल्स, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो चार्ज्ड पार्टिकल्स तो है बट दे आर नॉट फ्री टू मूव। लेकिन अगर इन्हीं आयोनिक सॉलिड्स को हम मोल्टन स्टेट में ले आ देते हैं, मोल्टन स्टेट यानी कि पूरा गर्म करके पिघला देते हैं, या फिर इनका हम एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं यानी कि पानी में घोल देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बिकॉज नाउ द चार्ज पार्टिकल्स हैव बिकम फ्री टू मूव। हम लोग को अब समझना है मेटालिक सॉलिड्स के बारे में। सो टेक फॉर एग्जांपल आयरन। तो आयरन का आप एक रॉड इमेजिन कीजिए, तो उस आयरन रॉड में सिर्फ और सिर्फ आयरन एटम्स है, ठीक है। नमक का क्रिस्टल इमेजिन किए थे तो उसमें तो Na+Cl- नमक कंपाउंड है, बट जो आयरन है वो एक एलिमेंट है, सिंपली मेटल। इसमें एक ही तरह का एटम्स है, Fe और सिर्फ Fe, आयरन एटम्स। तो सवाल उठता है कि इन आयरन एटम्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन आयरन एटम्स को इतना स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है कि टूटता नहीं। आयरन काफ़ी मजबूत होता है। तो यहाँ पे जो आपका बॉन्डिंग होता है हम लोग उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। ये मेटालिक बॉन्डिंग कैसा होता है, लुक हियर। तो आप इमेजिन करो आयरन का एक छोटा सा टुकड़ा लिए हैं हम, जिसमें कि आयरन का बहुत सारा एटम्स है। तो यहाँ पे हर एक ये जो गोल सा है ये आपका एक आयरन का एटम को दिखा रहा है, Fe, ये Fe सब आयरन का एटम को दिखा रहा है। ओके, अब मेटल्स के केस में क्या होता है कि हर एक एटम से एक या दो इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री हो जाता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो सिर्फ है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक एटम जो है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन या दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे क्रिस्टल में, यानी कि जो भी आयरन का टुकड़ा हम इमेजिन किए हैं उसमें मूव करने के लिए फ्री है। तो दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब ज़रा किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़िए, जैसे कि हम लेट से यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इस वाले, बाय द वे ये जो पॉजिटिव, ये प्लस प्लस क्या दिखा रहा है, हर एक एटम में से एक या दो इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद क्या बचा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बचा। इन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को हम लोग कर्नल्स भी बोलते हैं। तो KERNALS, कर्नल्स। तो हर एटम एक या दो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं कि उस लोहा का टुकड़ा को छोड़ के बाहर चला गया, वो उसी में है, वो पूरे क्रिस्टल में, पूरे पीस में अब मूव करने के लिए बस फ्री है। यानी कि जो मेरा पीस है आयरन का वो ओवरऑल न्यूट्रल ही है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़िए, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कर्नल के साथ अट्रैक्टिव फोर्स फील कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा, इस कर्नल के साथ भी, इसके साथ भी। यानी कि देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ग्लू की तरह काम कर रहा है, जो इन चारों कर्नल्स को, चारों पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को होल्ड करके रखा हुआ है। और एक इलेक्ट्रॉन ये काम नहीं कर रहा, सिर्फ इस बीच में मौजूद सारे बहुत जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सब ये काम कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ये इन चारों को होल्ड करके रखा है, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इनको होल्ड करके रखा है। तो ये जो इतना सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका मेटालिक बॉन्डिंग। ये मेटालिक बॉन्डिंग है, और यही वजह है कि आयरन आपका इतना स्ट्रॉन्ग है। एक इलेक्ट्रॉन और कर्नल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना काफ़ी नहीं होगा, लेकिन जब इतना सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो ये आयरन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, किसी भी मेटल को। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही कम मात्रा में होगा तो उस केस में जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो वीक होगा। जैसे कि सोडियम पोटेशियम, सोडियम पता है ग्रुप 1 का है, तो आउटर मोस्ट सेल में बस एक इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। और सोडियम आयंस का साइज भी बड़ा है, Na+ आयंस का साइज बड़ा होता है, तो रिजल्ट होता है कि वहाँ वीक मेटालिक बॉन्डिंग होता है। तो आप सोडियम को चाकू से काट सकते हो, पोटेशियम को चाकू से काट सकते हो, आयरन को चाकू से नहीं काट सकते हो, क्योंकि एक तो यहाँ पे कर्नल्स का साइज छोटा छोटा है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे, और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। कोई एटम एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई दो,
कोई 3 भी कर सकता है, क्योंकि उनको पता है आयरन Fe2+ बनाता है, Fe3+ भी बनाता है। ओके, आई होप मेटालिक बॉन्डिंग समझ में आ गया होगा। नाउ मेटालिक बॉन्डिंग, इससे हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सबसे पहले तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये मेटालिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में और मोल्टेन स्टेट में, दोनों ही स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन आयोनिक सॉलिड्स बस सॉलिड स्टेट में कर सकता था, बिकॉज सॉरी गलती हो गई, मोल्टेन स्टेट में कर सकता है या एक्वस सॉल्यूशन में, सॉलिड स्टेट में नहीं कर सकता, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस मूव करने के लिए फ्री नहीं है। लेकिन वो सॉलिड स्टेट में भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आयंस को मूव नहीं करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना है, जो कि फ्री है। ओके, दूसरा हम लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ इतना हार्ड होने के बावजूद, स्ट्रांग होने के बावजूद भी ये ब्रिटल था, लेकिन वो ब्रिटल नहीं है, वो मेलिएबल है। वो इसलिए क्योंकि इसको जब आप हैमरिंग करते हो तो यहाँ पे आप एक लेयर को दूसरा लेयर के से स्लाइड भी करा के देखिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। आखिर तो इसके नीचे, सबके नीचे प्लस ही प्लस था, एक लेयर आगे भी सरका दें उसको हम थोड़ा सा, तो आखिर तो उसके नीचे प्लस ही प्लस रहेगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी चेंज हो गया। यहाँ पे आपका था पहले इन सब जगहों पे Na+ के नीचे Cl- के नीचे Na+, उस तरह से था, लेकिन एक लेयर जब सरक गया तो Na+ के नीचे यहाँ पे Na+ आ गया था, यहाँ पे Cl-, तो अट्रैक्टिव फोर्स सडनली रिपल्सिव फोर्स में कन्वर्ट हो गया था। पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटेड था, फिर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर गया, हैमर करने पे टूट गया। लेकिन यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कितना भी हैमर करते रहो, अट्रैक्टिव फोर्सेस ही डोमिनेट करेगा, क्योंकि जो अट्रैक्शन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल्स के बीच में है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैलिएबल होगा। फाइन। एक और बात मेटालिक सॉलिड्स में कि एनसीईआरटी बुक में इसके लिए स्टेटमेंट ऐसे लिखा हुआ होगा कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दे आर फ्री टू मूव। मोबाइल मीन्स व्हाट? मोबाइल मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट बाउंड एट अ प्लेस, विच कैन मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, तो उसको बोलते हैं मोबाइल। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, दे कैन मूव थ्रू आउट द क्रिस्टल फ्रीली, and there are so many of these electrons that it appears like a sea. So we call that these positively charged ions or kernels are in a sea of free electrons. Last, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो आप याद करो डायमंड और ग्रेफाइट जो 10th क्लास में पढ़े थे। डायमंड में क्या होता है, 1 कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड रहता है। फिर ये कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से, मतलब इस तरह से पूरा आपका एक नेटवर्क बन जाएगा अगर हम बनाएं तो। एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से कनेक्ट होता है टेट्राहेड्रल फैशन में। तो हम लोग देख रहे हैं कि पूरा एक यहाँ पे एक नेटवर्क बन गया कार्बन एटम्स का, और इसलिए इसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। और ये जो बॉन्ड्स है ये कोवैलेंट बॉन्ड्स है, तो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, यानी कि डायमंड देखा जाए तो पूरा का पूरा डायमंड ही आपका एक जाइंट मॉलिक्यूल है। वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का बात ही नहीं आएगा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल ही है बस, और हम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में कोवैलेंट बॉन्ड्स का यहाँ बात कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि पहले तो ये होगा बहुत स्ट्रांग, सुपर स्ट्रांग, क्योंकि यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड्स है, पूरा का पूरा एक जाइंट मॉलिक्यूल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बात नहीं हो रहा। दूसरा होगा कि जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर मोस्ट शेल में, और चारों का चारों बिजी है बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन जो कार्बन का एलोट्रोप है ग्रेफाइट, उसमें एक कार्बन एटम आपका 3 ही कार्बन एटम से अटैच्ड रहता है, हेक्सागोन रिंग्स बनाता है। तो इसमें आपका लेयर वाइज अरेंजमेंट होता है, एक लेयर हो गया जिसमें कार्बन एटम्स का, जिसमें कार्बन एटम हेक्सागोन शेप में अरेंज्ड है, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से, फिर उसके नीचे एक लेयर है, फिर उसके नीचे एक लेयर है। तो ये डिफरेंट लेयर्स में है, और इन लेयर्स के बीच में एक लेयर और अगला ये एक लेयर है, फिर ये एक नीचे एक लेयर है। एनसीईआरटी बुक में अच्छा पिक्चर दिया होगा। इन लेयर्स के बीच में आपका वही वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का बात आएगा, यहाँ पे आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा डायमंड ही इज़ लाइक ए जाइंट मॉलिक्यूल। ओके, तो ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, हर एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है।
सो डायमंड भी लेकिन कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एक लेयर है उस लेयर में आपका पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है कार्बन एटम्स का। बाय द वे, अगर हम बस एक लेयर को निकाल के ग्रेफाइट से रख देना तो उसको हम लोग ग्राफीन बोलते हैं। ग्रेफाइट और ग्राफीन में ही अंतर है। ग्रेफाइट में आपका ये बहुत सारा लेयर्स है, इन लेयर्स के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर सिर्फ एक लेयर को देखें तो सिर्फ एक लेयर बहुत मजबूत है, क्योंकि वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड्स, और उसको हम लोग ग्राफीन बोलते हैं। और ग्राफीन का मतलब ये जो एक लेयर है उस लेयर को फोल्ड करके, जैसे पेपर होता है ना, पेपर को हम लोग फोल्ड करके, ये इमेजिन कीजिए एक लेयर है, तो इसको हम लोग ऐसे फोल्ड करके ऐसे एक ट्यूब बना देंगे अगर हम, तो ग्राफीन का भी एक लेयर को, एक शीट को लेके अगर हम फोल्ड कर दें तो उसको हम बोलते हैं कार्बन नैनो ट्यूब। एंड दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स। ओके, और एग्जांपल क्या हो जाएगा कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड का? सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। सिलिकॉन कार्बाइड, इसको हम लोग कार्बोरेंडम भी बोलते हैं, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। सिलिकॉन भी याद कीजिए ग्रुप 14 का ही है, कार्बन भी ग्रुप 14 का है, दोनों के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब एक सिलिकॉन एटम 4 कार्बन एटम से कनेक्ट होगा, फिर एक कार्बन 4 सिलिकॉन एटम से, इस तरह से करके आपका दोनों 1:1 का रेशियो में होगा जो भी। तो सिलिकॉन कार्बाइड भी आपका डायमंड की तरह ही है, जायंट मॉलिक्यूल, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड से यहाँ पे। ओके, और सिलिकॉन कार्बाइड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ग्राफीन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है,